Very good morning to everyone. We are there with the subject PK, chapter number 6 for partner. So, what we're going to solve is the problem number 10, which is there on it at in a textbook, page number 249. So, page number 249, problem number 10, we will going to solve it now. Okay, so very first thing, who are the partners? Shweta, Nupur, and Sanika. They are the partners, and they are sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. The balance sheet is given as on 31st March 2019 was as follows. So this is the balance sheet which is given to you. Okay. Now what you have to prepare, we will just see to it. You have to prepare, show all the necessary ledger accounts to close the books of the firm. It is clearly mentioned over here. What you have to prepare, you have to prepare the ledger accounts. So which ledger accounts you have to prepare? Realization account, partners capital account, and cash or bank account. Okay, so I'm giving you 1 minute. I want everyone to prepare and be ready with the accounts. So I hope your accounts are ready now. So we just start with the problem. Okay, so the very first side, as we say, we always put the assets. Okay, we always start with the asset side. On the asset side, the information which is given is sundry assets. So sundry asset is given 1,60,000, and next is cash at bank, which is given 5,000, and capital account of Sanika is given at 10,000. Okay, so first sundry assets, where you will going to put the sundry asset, you will going to transfer it to the realization account के debit side में. Okay, realization के debit में you will going to mention. Now here no more assets are there, only one as heading is given, that is two sundry assets, which means all the assets are there in this. Okay, so and it is given how much? 1,60,000. Okay, so simply you have to take the sundry asset amount and you have to put it in realization account. Okay, now the second which is given, it was cash and bank. Okay, so cash at bank, so this is the opening balance of cash and bank or bank account, which is given 5,000. So you will going to show it in the कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में. ठीक है, तो कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड इट इज हाउ मच गिवन 5,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे क्रेडिट एसेट साइड में इट इज गिवन कैपिटल अकाउंट सानिका. तो सानिका इज अ पार्टनर. ओके, लेकिन उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ पे दिखा है? एसेट साइड में. तो अगर किसी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड में दिखाया है, तो यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट पार्टनर ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो जैसे अगर लाइबिलिटीज में दिखाया है, श्वेता और नुपुर का लाइबिलिटीज में दिखाया है और सानिका का एसेट में दिखाया है, तो जो लाइबिलिटीज में दिखाया है वो आप दिखाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अगर एसेट साइड में किसी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस दिखाया है, ओपनिंग कैपिटल दिखाया है, तो आप उसको दिखाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड. इज इट क्लियर? Okay, so we will going to put both the partners, all the three partners. So सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो आप सानिका है जिसका एसेट साइड में ओपनिंग दिया है, तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में. और क्योंकि सानिका का था तो सिर्फ सानिका के कॉलम में
10,000 और जो दोनों पार्टनर्स है, बचे हुए पार्टनर्स है श्वेता एंड नुपुर, उनका जो कैपिटल दिखा है वो कहाँ पे दिखा रहा था? लायबिलिटी साइड में, तो उसको आप कहाँ पे दिखाओगे? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर लायबिलिटी में दिया है तो क्रेडिट साइड में, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर एसेट साइड में किसी पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल दिया है तो। इज इट क्लियर? Now, here we have done with assets and we have also done with the opening, putting the opening capital. Now, only one liability is given, that is the sundry creditors, which is given 95,000. So, ये जो 95,000 है, you will going to record it on the credit side of the realization account. ठीक है, तो आप transfer of liability की entry है ये, so you will going to record it on the credit side of realization account. तो realization account के credit side में by sundry liabilities, okay, उसमें sundry creditors and which is given 95,000. Okay, sundry liability heading हो गया, उसमें sundry creditors 95,000. Okay, is it clear? Balance sheet very simple. Assets को realization के debit में, liability को realization के credit में, capital को partners capital में, लायबिलिटी में दिया है तो क्रेडिट साइड में अगर, और अगर किसी पार्टनर का कैपिटल एसेट साइड में दिया है तो डेबिट साइड में ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप बैलेंस शीट इज क्लियर। एनी डाउट इज देयर इन द बैलेंस शीट? Okay, then we can start with the adjustments then. As I said, the firm is dissolved as on 31st March 2019. Okay, and sundry assets realized at the rate 60% of its book value. क्या बोला? sundry assets realized हुए हैं और कितना realized हुए हैं? 60% of its book value. ठीक है, सबसे पहले एंट्री क्या होगी? दो इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे sundry assets के? कभी भी sundry asset सोल्ड होता है तो पैसे आते हैं, which means कैश और बैंक अकाउंट will be debit to, क्योंकि एसेट है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, सो sundry asset कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू realization account. Okay, so first effect you will going to put which side? realization के credit side में you will going to show by cash or bank account. now कितना परसेंट बोला है sundry asset realized हुआ है? 60% of sundry which is given in the book value. ठीक है, तो कितना दिया हमको? book value is given 1,60,000 जो आपको बैलेंस शीट में दिया है, इसका 60% आपको फाइंड आउट करना है into 60 upon 100. ठीक है, तो कितना होगा? what will be the amount? Correct? So it is 96,000. कितना होगा? 96,000. ठीक है, I hope everyone knows how to calculate the percent. Okay, so 1,60,000 का 60% कितना आता है? 96,000. So if you will see over here, they had mentioned, they had written also over here 96,000. Okay, now ये तो first effect था, तो realization के क्रेडिट साइड में यू विल गोइंग टू राइट बाय कैश और बैंक अकाउंट, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? कैश और बैंक में आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट रियलाइज और अमाउंट के कॉलम में 96,000. ठीक है, सिंपल है. एसेट रियलाइज की एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट में आप लिखोगे बाय कैश और बैंक, और कैश और बैंक के डेबिट में आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय श्वेता. क्या बोला है? जो रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 है उसको पे किया, किसने पे किया? श्वेता ने पे किया, व्हिच मींस पार्टनर हैज पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस. तो जब भी पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करती है तो एंट्री क्या होगी? इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन के डेबिट में आप लिखोगे टू श्वेतास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि श्वेता ने पे किया, टू श्वेतास कैपिटल अकाउंट. और कितना पे किया? 2000. इन द ब्रैकेट यू विल गोइंग टू मेंशन कि क्या पे किया उसने. तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, तो उस ब्रैकेट में यू विल गोइंग टू शो टू सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंस. इज इट क्लियर? तो पहला इफेक्ट, पार्टनर ने पे किया है तो रियलाइजेशन के डेबिट में आप दिखाओगे टू श्वेतास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि श्वेता ने पे किया है. क्या पे किया है? रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया है, तो वो भी आप ब्रैकेट में शो करोगे, और जो अमाउंट है वो आप डालोगे सेकेंड कॉलम में. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट इफेक्ट, रियलाइजेशन के डेबिट में टू श्वेता. तो अगर रियलाइजेशन में श्वेता कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल में हम क्या लिखेंगे?
बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, और कौन पे कर रहा है? श्वेता, तो श्वेता के कॉलम में 2000. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट. क्या बोला है? नूपुर और सानिका दोनों भी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है. और नूपुर प्राइवेट स्टेट हैज गॉट अ सरप्लस ऑफ 3000 एंड दैट ऑफ सानिका 8000. अब यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं जिसमें से दो बोला है इंसॉल्वेंट है, ठीक है. तो इन दैट, और इसके अलावा क्या बोला है कि नूपुर के प्राइवेट एसेट को बेच के कितना पैसा मिला उनको? सिर्फ 3000. और सानिका के प्राइवेट एसेट को बेच के उनको कितना अमाउंट रिकवर हुआ? 8000. ठीक है, यानी यहाँ पे 3000 और 8000 ये जो अमाउंट है वो रिकवर हुआ फ्रॉम नूपुर एंड सानिका, यानी पैसे आए बिजनेस में. तो एंट्री क्या होगी? इट विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू नूपुर्स कैपिटल अकाउंट टू सानिकास कैपिटल अकाउंट. क्या एंट्री होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 3000 और 8000 पैसे मिले मुझे, फर्म को मिले, नूपुर और सानिका के एसेट बेचकर मिले, तो पैसे आए, ठीक है. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. टू कहाँ से आया कैश? नूपुर और सानिका के एसेट बेच के, तो टू नूपुर्स कैपिटल अकाउंट टू सानिकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है. तो यहाँ पे दो इफेक्ट जाएंगे. पहला इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और बाय कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है. कितना पैसा मिला नूपुर से? कितना रिकवर हुआ? 3000. और सानिका का एसेट बेच के कितना रिकवर हुआ? 8000, ठीक है. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में हमने कैश और बैंक लिखा, तो कैश और बैंक में हम क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ द पार्टनर. तो टू नूपुर्स कैपिटल अकाउंट कितना रिकवर हुआ? 3000. एंड टू सानिकास कैपिटल अकाउंट कितना रिकवर हुआ? 8000, ठीक है. तो टू इफेक्ट्स व्हेनेवर द एसेट्स ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स आर सोल्ड, और कोई भी पैसा रिकवर हुआ है, तो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में यू विल गोइंग टू पुट बाय कैश और बैंक अकाउंट, और कैश और बैंक अकाउंट में you will going to write the name of the insolvent partners. Is it clear? Now here all the entries have been done, right? सारे हमने एंट्रीज डाल दिए, ठीक है. अब इंसॉल्वेंसी के लिए हमें we have to find out the capital deficiency, ठीक है. कितना कैपिटल डेफिशिएंसी अमाउंट है, ठीक है. लेकिन बिफोर दैट you have to close your realization account. और रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते वक्त आपको एक चीज ध्यान देनी है कि वेदर ऑल द लायबिलिटीज व्हिच आर देयर वेदर दे आर पेड ऑफ और दे आर नॉट पेड, ठीक है. नाउ इन दिस प्रॉब्लम ओनली वन लायबिलिटी इज देयर, दैट इज ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स. और एडजस्टमेंट में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे कर दिया है. अगर वो पे नहीं किया है तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे दी लायबिलिटी. ओके, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर एक ही लायबिलिटी है जो 95,000 है. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे द लायबिलिटी. तो यहाँ पे पे करेंगे लायबिलिटी पहले, ठीक है. तो लायबिलिटी पे करने का एंट्री क्या है? इट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. क्या एंट्री है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. तो रियलाइजेशन में यू विल गोइंग टू मेंशन टू कैश और बैंक अकाउंट एंड द सेम अमाउंट जितना लायबिलिटी आपको बुक वैल्यू बुक में यानी ओपन बैलेंस शीट में दिया गया है, ठीक है. तो जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है वही पूरा का पूरा अमाउंट पे करेंगे, ठीक है. तो एंट्री क्या है? रियलाइजेशन के डेबिट में यू विल गोइंग टू पुट टू कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में यू विल गोइंग टू शो which liability is been paid, और अमाउंट के कॉलम में the amount of the liability. Okay, this was the first effect. तो रियलाइजेशन में अगर हमने कैश और बैंक लिखा है तो कैश और बैंक में हम क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यू कैन राइट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में सन्ड्री क्रेडिटर्स और अमाउंट, ठीक है. बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड 95,000 अमाउंट. इज इट क्लियर? Now here now we have done with all the points, ठीक है. We have done all the adjustments and even we have paid all the liabilities, ठीक है. तो आपको ये चीज ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर कोई लायबिलिटी है और वो लायबिलिटी पे नहीं की है, not by the firm, not by the partners taken over, then the firm has to pay off this liability before closing the realization account. ठीक है. अगर यहाँ पे आपने लायबिलिटीज पे नहीं किया और रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट की लॉस की जगह पे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है.
या लॉस है तो गलत अमाउंट होगा, ठीक है, टोटल गलत होगा। तो यहाँ पे रियलाइज़ेशन गलत होगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल गलत होगा, फिर कैश और बैंक गलत होगा। तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इज़ इट क्लियर? नाउ वी विल गोइंग टू क्लोज़ आवर रियलाइज़ेशन अकाउंट। So which side is more? Debit side is more, which is 2,57,000. सेम अमाउंट क्रेडिट में डाला मैंने, उसमें से आई हैव डिडक्टेड दिस टू टोटल, ठीक है? 95,000 प्लस 96,000 का टोटल निकाल के डिडक्ट किया मैंने 2,57,000 में से, तो कितना अमाउंट बचा? 66,000। अब ये 66,000 को मैं डिवाइड करूँगी तीनों पार्टनर्स में इन द रेशियो व्हिच इज़ गिवन, ठीक है? तो रेशियो क्या दिया है? 3:2:1, राइट? तो ये जो 66,000 है इसको 3:2:1 में मैं डिवाइड करूँगी, तो 3, 2, 1 तो कितना शेयर आया? श्वेता को कितना मिला? 33,000, नूपुर को कितना मिला? 22,000 और सानिका के कॉलम में कितना गया? 11,000, ठीक है? एज़ पर द रेशियो व्हिच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीवन, रियलाइज़ेशन अकाउंट क्लोज़ करने तक। एनी डाउट इज़ देयर टिल नाउ? ओके, नाउ यू विल गोइंग टू ट्रांसफर दिस लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? यहाँ पे क्रेडिट में है, तो जब आप ट्रांसफर करोगे तो कौन सी साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट में इफ यू विल सी ओवर हियर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, और ये जो तीनों अमाउंट हमने डिवाइड किया था, यू विल गोइंग टू पुट इट इन द पार्टनर्स अमाउंट कॉलम। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला है? 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है और 1 पार्टनर सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कौन है? श्वेता, और इंसॉल्वेंट कौन है? नुपुर और सानिका। तो ये जो नुपुर और सानिका का अमाउंट है, ये जो पैसा है जो पे नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले आपको वो फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द कैपिटल डेफिशिएंसी अमाउंट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या था इसका? डेबिट माइनस क्रेडिट। क्या फॉर्मूला था? डेबिट माइनस क्रेडिट। तो इफ यू विल सी यहाँ पे सानिका का डेबिट में कितना है? 10,000 प्लस 11,000, ठीक है? और यहाँ पे क्रेडिट में कितना है? 8,000 व्हिच मीन्स डेबिट उसका ज़्यादा है। तो डेबिट कितना है? 21,000 हो गया। सेम टोटल आप यहाँ पे डालोगे। इसमें से आप माइनस करोगे 8,000 जो उसका क्रेडिट का टो अमाउंट है। तो कितना कैपिटल डेफिशिएंसी अमाउंट आया उसका? 13,000। कितना डेफिशिएंसी अमाउंट आया? 13,000। सिमिलरली नुपुर का अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड ज़्यादा है व्हिच इज़ 22,000। सेम अमाउंट आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है? इसमें से जो अमाउंट माइनस करना है इट इज़ हाउ मच? 15,000 प्लस 3,000 दैट इज़ 18,000, ठीक है? 18,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा वो कितना है? 4,000, यानी कितना कैपिटल डेफिशिएंसी है नुपुर का? इट इज़ 4,000, राइट? So Sanika and Nupur, they both are insolvent. And what is the amount of capital efficiency of Nupur and Sanika? Of Nupur it is 4,000 and of Sanika it is 13,000, right? Now ये जो amount है 4,000 and 13,000, this amount will be paid by the solvent partner. तो solvent partner कौन है यहाँ पे? श्वेता है। That's why whenever you will going to write the name, it will be of the solvent partner. So by Shweta's capital account, bracket में deficiency amount. ओके, तो 13,000 एंड 4,000 ये जो पैसा है ये फर्म को पे करना है नुपुर और सानिका ने, बट दे आर नॉट हैविंग दिस अमाउंट, दिस मच अमाउंट टू पे। सो हु विल गोइंग टू पे दिस अमाउंट ऑन? इट विल बी पेड बाय द श्वेता, हु इज अ इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो जब नाम भी लिखोगे तो किसका लिखोगे? श्वेता का लिखोगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक इफेक्ट गया पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो जो सेकंड इफेक्ट है वो कहाँ पे जाता है? पार्टनर्स के डेबिट साइड में, ठीक है? ये क्रेडिट में हो गया। अब डेबिट साइड में आप लिखोगे दोनों इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम। तो दोनों इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन है? टू नुपुर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सानिकास कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब अमाउंट डालोगे तो अमाउंट कौन पे कर रहा है? जब अमाउंट डालोगे तो अमाउंट कौन पे कर रहा है? श्वेता। कौन पे कर रहा है? श्वेता। ओके, सो यहाँ पे एंट्री है हमारी सॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो सॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स, तो सॉल्वेंट same amount 4,000, 15,000, 13,000, and over here also 4,000 and 13,000. Is this point is clear to you?
Any doubt till over here? किसी को कुछ डाउट है? समझा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? Whenever the partners, any partner is insolvent, the solvent partner will going to burn the amount which will be there of insolvent partner. In this, two partners were insolvent, तो उसका जो भी amount है वो solvent partner ही पे करेगा. तो यहाँ पे 4,000 13,000 श्वेता पे करेगी. इससे श्वेता का नाम लिखा है क्रेडिट साइड में. और ऑन द डेबिट साइड ये विल गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर. और जो अमाउंट है वो किसके कॉलम में जाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर के कॉलम. ठीक है. अब यहाँ पे इफ यू विल सी नुपुर एंड सानिका, इन दोनों का हो गया है क्लोज. ठीक है. अब हम किसका क्लोज करेंगे? श्वेता का, क्योंकि वही एक सॉल्वेंट पार्टनर बची है. तो उसका टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 65 प्लस 2 विच इज 67,000. और यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे तो जो कम आएगा, ठीक है, 33 प्लस 4 प्लस 13,000, दिस विल बी लेस. ये छोटा अमाउंट है 67 से, विच मीन्स क्रेडिट साइड ज्यादा है. ठीक है. तो सेम टोटल का अमाउंट मैं डेबिट में भी डालूंगी. उसमें से आई विल गोइंग टू डिडक्ट दिस 3 अमाउंट. तो कितना पैसा है? 17,000. ठीक है. दिस इज अमाउंट विच इज पेड बाय श्वेता, विच इज 17,000. तो वो कहाँ पे लिखोगे आप? टू बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट. ठीक है. तो फर्स्ट इफेक्ट है. तो सेकेंड इफेक्ट हम डालेंगे कैश और बैंक में. तो कैश और बैंक के क्रेडिट में यू विल सी बाय श्वेता's कैपिटल अकाउंट 17,000. तो एक ही सॉल्वेंट पार्टनर है तो उसका अमाउंट हमने कैश और बैंक अकाउंट में डाला विच इज 17,000. नाउ यू विल गोइंग टू क्लोज योर कैश और बैंक अकाउंट. तो कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करने पे दोनों साइड मेरा सेम टोटल आ रहा है. तो if the amount, if the total is coming same, which means your cash and bank account is closed properly and your problem is done by you properly. Okay. So I hope this problem is clear to you, where the two partners, they are insolvent. Any doubt over here? In any point which you have not understood? Okay, so here we have done with all the okay, so today we have completed with the chapter of dissolution, and even we have done with the portion of BK also.